اور خبر آپ کو دیں کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کی اجازت کا نوٹیفیکیشن آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کو موصول ہو گیا۔ سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سماعت کے دوران جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا کہ کل سائفر کیس کی جیل میں سماعت رکھ لیتے ہیں، ملزمان کی حاضری بھی مارک کرنی ہے۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ عدالت کو حاضری کے لیے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، جس پر جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے بغیر جیل کیسے جا سکتے تھے۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ عدالت 5 دسمبر کے لیے سائفر کیس مقرر کر لے۔ ہفتے کے روز مختلف ٹرائل کے کیسز ہوتے ہیں۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا کہ سماعت سے پہلے جیل انتظامیہ کو بھی آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ وکیل علی بخاری اسلام آباد ہائی کورٹ حکم پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ملزمان کی پیشی کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے حکم پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیا گیا۔ کہا ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ 1 ہفتے میں نام نکال کر ڈپٹی رجسٹرار کو رپورٹ پیش کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنایا۔ 21 نومبر کو عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ورثہ میں جائیداد پر تنازع شروع ہو گیا، کیا کلچر ہے؟ سربراہ پی ٹی آئی کے قریب ترین ساتھیوں نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی بھرمار کر دی۔ خواجہ آصف اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں، جنہوں نے اقتدار کے مزے لیے انہوں نے ان کی تمام پالیسیز کی مذمت کر دی۔ جو لوگ آج بھی سربراہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ رل گئے۔ خالی پلاٹ کی حفاظت کے لیے بزدار 2 کو بٹھا دیا ہے۔ کہانی کا پلاٹ دلچسپ ہو گیا ہے، خالی پلاٹ کا کیا بنے گا انتظار فرمائیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کی 266، صوبائی اسمبلی کی 593 جنرل نشستیں ہوں گی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 61، کے پی میں 45، بلوچستان میں 16 نشستیں ہوں گی۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہوں گی۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297، سندھ میں 130، کے پی 115، بلوچستان میں 51 نشستیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں مکمل کی گئیں۔ 2 خصوصی ٹریبونلز نے حلقہ بندیوں پر 1324 اعتراضات نمٹائے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے، الیکشن کے ملتوی ہونے یا تاخیر ہونے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ 15 دسمبر کو انتخابی شیڈول آ جائے گا اور دسمبر کے تیسرے ہفتے میں کاغذات نامزدگی شروع ہو جائے گی۔ پاکستان 15 دسمبر کو انتخابی شیڈول جاری کر دے گا۔ دسمبر کے تیسرے ہفتے کاغذات نامزدگی لینا شروع کر دے گا۔ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ابھی الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں یا ستمبر میں جا رہا ہے، اکتوبر میں جا رہا ہے، کیا سرائیوں میں پیچھے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ نادرا کے تعاون سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہماری انتخابی فہرستیں تیار کی گئی۔ ریٹرننگ آفیسروں کی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے تحت تمام وہ جلسے جلوس اپنا کرتے رہیں گے۔ اگر کسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں اعتراضات ہیں تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان سے رجوع کرے۔ تحریک انصاف کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپی بھیجی۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں آپ ہمیں ضمانت دیں، تو یہ بہت درست ہے۔ جن کو عدلیہ نے سزا دے دی ہے وہ تو الیکشن لڑنے کے قوانین کے مطابق اہل نہیں، کہ مقدمے چل رہے ہیں، وہ ضمانتوں پر ہیں، سزا نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد ٹکٹ کے امیدوار درخواستیں 4 دسمبر تک ارسال کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ نیئر حسین بخاری کے مطابق جنہوں نے پہلے درخواستیں دی ہیں بغیر بینک ڈرافٹ کے درخواستیں ارسال کریں۔ نئی درخواستیں دینے والے قومی اسمبلی کے لیے 40,000 کا بینک ڈرافٹ منسلک کریں۔ صوبائی اسمبلی کے لیے 30,000 روپے کا بینک ڈرافٹ منسلک کریں۔ درخواستیں بلاول ہاؤس کراچی کے پتے پر ارسال کریں۔ درخواستیں ہاؤس نمبر 1 اسٹریٹ 85 ایمبیسی روڈ اسلام آباد کے پتے پر بھی ارسال کی جا سکتی ہیں۔ نون لیگ نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پہلا اجلاس کل لاہور میں ہوگا۔ بورڈ سرگودھا ڈویژن سے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ کل کرے گا۔ راولپنڈی ڈویژن میں نون لیگی امیدواروں کا فیصلہ 3 دسمبر، ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن کے امیدواروں کا فیصلہ 6 دسمبر، جبکہ 7 دسمبر کو اجلاس صوبہ بلوچستان میں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ کرے گا۔ بہاولپور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پارٹی ٹکٹ سے متعلق اجلاس 8 دسمبر، لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن کے بارے میں 14 دسمبر اور صوبہ سندھ میں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ 16 دسمبر کو اجلاس میں کیا جائے گا۔
सकरंड माड़ी केस में सिंध हाई कोर्ट पुलिस और तफ्तीशी हुकाम पर बरहम। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, SSP बेनजीराबाद और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस अमजद अली सेतो ने रिमार्क्स दिए कि चालान नामालूम अफराद के खिलाफ जमा कराया है। DIG तक असल लोगों के नाम देने की ताकत नहीं रखता। एक जगह लिखते हो गांव वालों ने अपने लोगों को मार दिया, फिर 4 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? ये लोगों के टैक्स का पैसा है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने बताया ये 2 वाकयात हैं। जस्टिस अमजद अली ने कहा सिस्टम इतना ताकतवर हो गया कि 4-5 लोग मर गए, कुछ जख्मी हुए, कोई बताने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? मरना नहीं है आपको? किसको बचाने में लगे हुए हो? क्या आप हमें बेवकूफ समझते हो? जब आप लोगों को पता चला मरने वाले बेगुनाह थे तो पैसे दे रहे हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने कहा बासर लोगों को बचाने के लिए पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया। जख्मी शख्स को मुखातिब करके इस्तफसार किया, आप लोग तो सच बोलें। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। पुलिस की तहकीकात पर यकीन नहीं, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। रेंजर्स के वकील ने कहा यह दरखास्त गैर मौसर हो चुकी, 2 केसेस का चालान पेश किया जा चुका। पेट्रोल की कीमत अगले 15 दिन बरकरार रहेगी। हुकूमत ने दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत 7 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी हुई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 83 पैसे लीटर सस्ता हुआ। मिट्टी के तेल की कीमत 201 रुपए 16 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 175 रुपए 93 पैसे फी लीटर हुई। वजारत खजाना ने बताया है वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की मंजूरी दी। रात 12 बजे से नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। डीजल में 7 रुपए कमी पर अवाम कहते हैं कि ये खुशाइंद है, मगर मुल्क भर में एक माफिया है जो ना ट्रांसपोर्ट के किराए कम कर रही है और ना ही अशिया खुरनोश की कीमतों में कोई कमी कर रही है। हुकूमत को चाहिए इस पर एक्शन ले ताकि रिलीफ अवाम तक मुंतकिल हो सके। वही किराया है, 1 रुपए की जगह पे 10 रुपए मांगते हैं, 10 रुपए की जगह के 50 रुपए मांगते हैं। कोई किराए में कमी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। डीजल बढ़ता है तो ये अपने किराए बढ़ाते हैं। हुकूमत को यह भी एक्शन लेना चाहिए कि इनको इनके भी देखें, इनके किराए कम करे, आवाम को फायदा हो। तो ऊपर भी एक्शन लेके सब्जियों का रेट भी कम किया जाए, दूध का रेट कम किया जाए। 10-15 रुपये सब्जियां भी कमी करन, कोई अवाम को सुकून हो, किराया भी कमी करन। अभी किरायों में कमी नहीं की गई, किराया भी बेसिकली वही चल रहे हैं। जरिए लोगों को फायदा होगा, जो भी कस्टमर है, अच्छी बात है। अशिया खुदनों से वो उसकी ट्रांजैक्शन जो होती है वो डीजल पे ही होती है। हम यही अपील करेंगे कि चीजों की वो सस्ती होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लोग जो हैं वो जो ज़राअत करते हैं उसके लिए ये बेनिफिट है, मगर डीजल की प्राइस कम होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माफिया जो है वो अपनी प्राइस वही वहाँ पे रखी हुई है। ये चोर बाजारी है, रात से पंप बंद है, अभी भी लाइनें लगी हुई हैं और आपको पता है कि ना पेट्रोल है ना डीजल है। हाई ऑक्टेन मिल रहा है, दूसरा मुश्किल ही है। गवर्नमेंट ने डीजल को 7 रुपए कम किया, लेकिन पेट्रोल पंप वालों ने किसी ने भी नहीं किया अभी तक कम। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जिसने नहीं किया उनसे करवाना चाहिए। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में अहम पेशरफ्त। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने माहौलियाती फंड्स में $10 करोड़, जापान ने $1 करोड़, जर्मनी ने $10 करोड़ और बरतानिया ने 6 करोड़ पाउंड्स देने का ऐलान किया है, जबकि अमरीका $1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा रकम माहौलियाती फंड्स में देगा। फंड से कमजोर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात से निमटने में मदद मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनारुल हक काकड़ का CNN को इंटरव्यू। कहा आलमी दर्जा हरारत ने इजाफा ना करने वाले मुल्कों को दुनिया की जिम्मेदारी उठानी होगी। माहौलियाती तब्दीली में बड़ा किरदार अमीर मुल्कों का है। उधर लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के 10 अजला में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्केट्स, बाजार, कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेज भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। इजलास में सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल बदस्तूर जारी रखने की हिदायत और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। मेज के इधर भी IMF होती है, उधर भी IMF। सारा दबाव सनतकारों और अवाम पर डाला जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं टैक्स जमा करना है तो जागीरदारों पर टैक्स लगाएं।
उधर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई ता नवंबर 3,484 अरब रुपए का टैक्स जमा कर लिया। तर्जुमान FBI ने अपने ट्वीट में लिखा कि नवंबर 2023 में 736 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। टैक्स जमा करने की शरह में गुज़िश्ता साल की निस्बत 38% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स पर 61,000 की सतह पर पहुंच गया। 544 पॉइंट्स इजाफे के साथ 61,076 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन का कहना है गुज़श्ता माह स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा 6 करोड़ 60 लाख डॉलर की पोर्टफोलियो सरमायाकारी आई, जबकि सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख डॉलर मार्केट से निकले। 2017 के बाद स्टॉक मार्केट में ये सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। नवंबर 2023 में 100 इंडेक्स में 17% का इजाफा हुआ। कराची में उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला जारी। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज है। कॉन्फ्रेंस में आज 8 सेशन समेत 8 किताबों की रुनुमाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फारूक समी से। उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज का आगाज हो गया है। आज मजमूई तौर पर 8 सेशंस होंगे और इसके साथ साथ 8 किताबों की रुनुमाई भी होगी। आज की खुसूसी मुलाकात में माहिर तालीम सैयदा आरफा ज़हरा मेहमान होंगी, जिनके साथ इंटरेक्शन में तलबा तालबात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। भारत के सहाफ़ी सईद नकी जो हैं, उनकी जो किताब है और उनका जो ड्रामा है मुसलमान लापता हो गए, उसकी भी रोनुमाई की जाएगी, जिसका तर्जुमा प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अजीज ने किया है। तो आज के दिन का इख्तिताम होगा वो मुशायरे पे होगा, जिसपे अनवर शऊर, AH खानजादा, उमैर नजमी समेत दीगर जो शोरा हैं, मारूफ शोरा, वो अपना कलाम शुरका के सामने पेश करेंगे। जी उधर PCB ने वहाब रियाज के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिए गए। तीनों फौरी अपनी जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में 5 T20 की सीरीज इनका पहला असाइनमेंट है। तीनों अरकान स्किल्स कैंप में इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने सिडनी पहुंच गई। स्क्वाड कुछ देर बाद कैनबरा पहुंचेगा। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। नया कप्तान, नई मैनेजमेंट और नए अज़ाइम। क्या पाकिस्तान टीम इस बार दौरा ऑस्ट्रेलिया में नतीजा बदल सकती है? स्क्वाड 3 टेस्ट की सीरीज के लिए कैंगरूज के देश पहुंच गया। खिलाड़ी कल तक आराम करेंगे, इतवार से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे, वो उर्दू जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने कहा पर्थ में दुनिया की सबसे बेहतरीन पिच होती है। शाहीनों को 6 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा प्रैक्टिस मैच कैनबरा में खेलना है। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ, दूसरा 26 दिसंबर से मेलबर्न और तीसरा 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में नए मुल्क की आमद। युगांडा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम की कामयाबी में पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ियों का नुमाया किरदार रहा। युगांडा का नाम आते ही जहन में ईदी अमीन, उनकी आधी दर्जन बीवियां और 1 दर्जन बच्चे आते हैं। 4.25 करोड़ आबादी वाले इस अफ्रीकी मुल्क में ईदी अमीन के बाद फुटबॉल मकबूल तरीन खेल है, लेकिन क्रिकेट ने अब खूब तरक्की कर ली है। पाकिस्तान और भारत के तारिकीन वतन ने मकामी लोगों में क्रिकेट मकबूल की। ICC ने युगांडा को क्रिकेट की तरक्की पर खूब अवार्ड्स दिए। नामीबिया में युगांडा की टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम कर दी। जिम्बाब्वे की टीम को हराया। टीम की कारकर्दगी में पाकिस्तानी नजाद रियाजत शाह और बिलाल हसन का नुमाया किरदार रहा। रॉजर मुकासा कहते हैं युगांडा का नारा है आखिरी गेंद तक लड़ो। 43 साला सोबोका 3 दहाइयों से वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब देख रहे थे। अब उनका ख्वाब भी जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पूरा होगा। T10 लीग में आज भी 3 मुकाबले होंगे। पहला मैच न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। टीम अबू धाबी करेगी सैम्प आर्मी का सामना। तीसरे मैच में चेन्नई ब्रेव्स और दिल्ली बुल्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। इटली में फुटबॉल के अहम मैच में तमाम खिलाड़ी तवज्जो का मरकज बन गए। तमाम खिलाड़ियों, कोचेज और टीम मैनेजमेंट ने फलस्तीन में शहीद होने वाली बच्ची के चेहरे पर जख्म को अलामती निशान बनाकर निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। पूरी दुनिया ने इस मैच को देखा। पाकिस्तानी बॉक्सिंग स्टार उस्मान वजीर ने थाई हरीफ को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दे दी। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन उस्मान वजीर के जारहाना अंदाज के सामने थाई बॉक्सर बेबस नजर आया।
اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.